हेलो डियर्स, दिस इज़ अरियान अली खान। मेरे चैनल का नाम फिज़िक्स विद अरियान 8234 फोर्स एंड मोशन का चैप्टर हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर का। लेक्चर नंबर 2 अभी है और लेक्चर नंबर 1 हमने अपलोड किया हुआ है। तो आज हम शुरू करेंगे, स्पीड से शुरू करते हैं कि स्पीड क्या है। स्पीड को शुरू करते हैं कि स्पीड क्या है। लेट्स डिफाइन स्पीड, दैट व्हाट इज स्पीड। द डिस्टेंस covered by a body, the distance covered by a body in unit time. The distance covered by a body in unit time is called speed. हम इसको speed कहते हैं। Distance covered by a body, मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। V is equal to S divided by t, where S denoted distance, distance is denoted by S, and T is time, distance divided by time, distance divided by time. Distance divided by time is equal to speed. The distance covered by a body in unit time is called speed, And the next point is speed is a scalar quantity. It means that speed doesn't needs direction. स्पीड के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये एक नंबर की तरह होती है, एक नंबर, और इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। और इसके साथ साथ लेट्स आई एम गोइंग टू राइट हियर लेट्स हियर CGS यूनिट, इसकी CGS यूनिट जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड APS सिस्टम में स्पीड की यूनिट फुट पर सेकेंड है। तो ये पॉइंट नोट करें कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी per unit time, in a unit time we call it speed, we say to speed। mathematically हम इसको V is equal to S divided by T, speed is a scalar quantity, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, जो कि हम जनरली इसको यूज़ करते हैं, मीटर पर सेकेंड। CGS सिस्टम में स्पीड की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और APS सिस्टम में फुट पर सेकेंड स्पीड की यूनिट है। हम अब स्पीड के टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, वी आर गोइंग टू डिस्कस इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। What is instantaneous speed? First I am going to define it, that what is instantaneous speed. Instantaneous speed, the speed at any let's change my marker. Okay, the speed, okay, it's also not well, so I'm using this one. The speed at any instant of time is called instantaneous speed. और हम इस तरह भी कह सकते हैं, the speed measured
in short interval of time, in short interval, एक खास एक शॉर्ट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्पीड होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। लेट सपोज एक बॉडी यहाँ से इसकी स्पीड शुरू हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी आ गई, तो इस बॉडी का किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट पर, लेट सपोज इस पॉइंट पर मैं कहूं कि इसकी स्पीड जो है लेट सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक शॉर्ट लम्हे में जो हम स्पीड को मेजर करते हैं उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेट सपोज हम यहाँ पर कह रहे या यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, कहीं पर भी करें, लेकिन एक शॉर्ट लम्हे में हम स्पीड को मेजर करें उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम इस तरह v is equal to limit del t approaches to 0 del v divided by del t, del v divided by del t, del v divided by del t, sorry it is instantaneous speed, so del s instantaneous speed, distance per unit time, distance per unit time, and also we can say that derivative of distance with respect to time gives instantaneous speed. We can write that the derivative of distance with respect to time gives us what? Gives us instantaneous speed. The derivative of distance with respect to time, the derivative of distance with respect to time gives us what? Instantaneous speed. Now I am going to discuss average speed, that what is average speed. The total distance, okay, first I am going to write average speed. The total distance covered by a body divided by total time is called average speed. The total distance covered by a body, जितना total distance एक बॉडी तय करे कुछ total time में divided by total time, we call it average speed. And the formula of average speed, as how we can denote it, we denote average speed is just like that. We average speed is equal to del s divided by del t, और याद रखें एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एवरेज स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रह सकती है और इसकी डायरेक्शन नहीं होती जो अपोजिशन में इसकी साइन नेगेटिव हम लगाएं, इसकी अपोजिशन हम नहीं लगा सकते। मतलब कि अगर एक बॉडी इस साइड पर जा रही है और दूसरी इस साइड पर, तो डायरेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव स्पीड। अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज, तो उसकी एवरेज स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम
क्या कह सकते हैं कि ये इसकी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है। हम इस तरह कहें कि अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ पर इसकी कितनी स्पीड थी, यहाँ पर इसकी कितनी स्पीड थी, यहाँ पर इसकी कितनी स्पीड थी, ये सारी स्पीड को या फिर हम टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और उसने कितना टाइम लिया ये हम कर ले, तो ये हमारे पास इस डिस्टिंक्शन, इस पॉइंट, इस डिस्टेंस का एवरेज स्पीड हम हमारे साथ आ जाएगा कि ये कितना एवरेज स्पीड कितना था इसका, एवरेज स्पीड कितना था इसका। मतलब कि कुछ पॉइंट्स इस तरह होंगे, अगर एक गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, कुछ गड्ढे वगैरह आए दरमियान में, या फिर यहाँ पर इसकी स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पर 80 थी और यहाँ पर 20 थी, तो एवरेज इसका कितना होगा, और टोटल टाइम लेट सपोज 20 सेकंड गुजर गया या फिर 10 सेकंड टोटल गुजर गया, तो देखिए 90 प्लस 80 प्लस 20 इसकी ये क्या है, ये मेरे पास स्पीड है इसका ये, और इसके साथ साथ इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस लेट सपोज हम कहें कि 20 है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम को हम एवरेज स्पीड कहते हैं, एवरेज स्पीड हम इसको कहते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, then we can say that the body uniform has an uniform speed. Okay, uniform speed, uniform speed. If a body covers equal distances in equal interval of time, equal distances in equal interval of time, interval of time, interval of time, then it is said to be uniform speed. जब एक बॉडी एक खास डिस्टेंस कवर करे और खास इंटरवल ऑफ टाइम में, खास इंटरवल ऑफ टाइम में, लेट सपोज हमारे साथ ये बॉडी यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो इसका लेट सपोज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तरह, ये लेट सपोज लेट्स चेंज द मार्कर। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर है, कितना 2 मीटर, और यहाँ से फिर यहाँ तक 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, सारे डिस्टेंसेस सेम, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यहाँ पर ये टाइम जो है 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर किए, 1 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर। देखिए इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 सेकेंड में 2 मीटर इस बॉडी ने कवर की, इसका मतलब ये स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, ये स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म के लिए याद रखें कि यूनिफॉर्म स्पीड में एवरेज स्पीड जो है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरिएबल स्पीड, that what is variable speed, that what is variable speed. Okay, variable speed. If a body covers unequal distances and an equal interval of time, then we say that the speed is variable. जब unequal distances कवर करें, लेट सपोज मैंने एग्जांपल लिया था
एक गाड़ी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रीच हो गई. लेट्स सपोज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस पाथ इनटू मैनी. ओके, हम इसको कहते हैं कि ये 2 मीटर है, 2 मीटर. लेट्स सपोज इसको कहते हैं ये 3 मीटर है. लेट्स सपोज इसको कह देते हैं कि ये, फिर से मेरे साथ हम लेट्स सपोज 4 मीटर लेते हैं और ये मेरे साथ लेट्स सपोज 3 मीटर अगेन है. देखिए डिस्टेंसेस चेंज हैं, डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं, डिस्टेंसेस चेंज. लेट्स सपोज ये हमारे साथ 1 सेकेंड में कवर हुआ, ये भी हमारे साथ 1 सेकेंड में कवर हुआ, ये भी 1 सेकेंड में कवर हुआ और ये भी 1 सेकेंड में कवर हुआ. तो देखिए इक्वल डिस्टेंसेस, सॉरी अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस 2 meter, 3 meter, 3 meter, 4 meter, unequal distances in equal interval of time, then the speed is variable. Then the speed is variable. Then the speed is variable. और variable के लिए याद रखें average speed जो है इसमें बराबर नहीं होगा किसके, इंस्टेंटेनियस स्पीड के, क्योंकि ये चेंज होता जा रहा है. देखिए डिस्टेंस चेंज, इसका मतलब स्पीड भी चेंज. अगर टाइम सेम भी है तो इसके साथ साथ स्पीड चेंज हो जाता है. तो ये वेरिएबल स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपस में इक्वल नहीं होते. किस केस में, वेरिएबल स्पीड में. एक एमसीक्यूज है आपके बुक में, एमसीक्यूज. आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट एमसीक्यूज. टू डिस्टेंसेस गिवन है, टू डिस्टेंसेस गिवन है. एमसीक्यूज बुक में जो है, बुक में है ऑलरेडी, फर्स्ट ईयर के बुक में है. तो देखिए 2 डिस्टेंसेस गिवन है, S1 S2. लेट्स, उसमें लिखा है कि ये 100 मीटर है, 100 मीटर, सॉरी किलोमीटर में गिवन था, किलोमीटर. S2 हमारे पास 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है. और इसके बारे में कहा गया है कि ये टाइम जो है T1 1 आवर और ये T2 हमारे साथ हाफ है 0.5 आवर, 0.5 आवर. S1 100 किलोमीटर कितने टाइम में, 1 आवर में, और S2 20 किलोमीटर कितने, 0.5 आवर में, 0.5 आवर में. और हमसे क्या मांग रहा है, एवरेज स्पीड हमसे मांग रहा है, एवरेज स्पीड हमसे मांग रहे हैं. और एवरेज स्पीड का हमें पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंसेस, टोटल डिस्टेंसेस डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिवाइड बाय टोटल टाइम. सो द रिजल्ट इज हाउ, टोटल डिस्टेंसेस 100 plus 20, 100 plus 20 kilometer divided by total time 1 hour plus 0.5 hour. So we get if we calculate then we get 80 kilometer per hour, 80 kilometer per hour. This is the result of that MCQs that was given in your book. किताब में आपके फर्स्ट ईयर बुक में ये गिवन है, ये एमसीक्यूज के S1 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर एंड S2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर एंड T1 इज इक्वल टू 1 आवर एंड T2 इज इक्वल टू 0.5. Then what would be the average speed? Then we know that average speed is equal to total distance divided by total time. Total distance is 100 kilometer plus 20 kilometer and total time 1 hour plus 0.5 hour. Then we will get the answer 80 kilometer. Okay. After that, I am going to discuss some important formulas for NMDCAT and ETA MCQs. And in a type of test formula, ये बहुत ही अहम फॉर्मूले हैं जो कि शॉर्ट ट्रैक से आपको, आप MCQs को हैंडल कर सकते हैं. लेट्स सपोज एवरेज स्पीड के लिए हैं ये सारे, एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए तरीके हैं. एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए ये सब होते हैं. हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, एफ डिफरेंट डिस्टेंसेस, एफ डिफरेंट
डिफरेंट डिस्टेंसेस, जब डिस्टेंसेस हमारे साथ क्या हो, डिफरेंट हो, एंड ऑल्सो टाइम टाइम इज डिफरेंट, जब टाइम और डिस्टेंसेस दोनों डिफरेंट होते हैं हो, तो हमारे साथ एवरेज स्पीड को हम इस तरह मालूम करते हैं, s1 डिस्टेंसेस हमारे पास डिफरेंट है, प्लस s2 प्लस s3 प्लस अब फला 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 जितनी भी डिस्टेंसेस गिवन है वो आपने ऐड करने हैं, डिवाइड बाय जितने टाइम्स गिवन है, t1 प्लस t2 प्लस t3 और फला फला जितना टाइम हमारे साथ गिवन है उसको हम लिख सकते हैं। तो ये हैं क्या, जब डिस्टेंसेस हमारे पास डिफरेंट हो और टाइम भी हमारे साथ डिफरेंट हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसके बाद एक और फॉर्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड वन एफ, जब हमारे साथ स्पीड डिफरेंट हो, डिफरेंट स्पीड्स हमारे साथ गिवन है और वो डिफरेंट हैं और इसके साथ साथ टाइम भी हमारे साथ डिफरेंट है, तो एवरेज उसमें क्या था, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में था, किसमें, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में था, इधर क्या है, स्पीड और टाइम के बारे में है और हमसे क्या मांग रहे हैं, एवरेज स्पीड। तो याद रखें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जब हमारे साथ स्पीड और टाइम डिफरेंट हो, v1 जो कि फर्स्ट स्पीड प्लस t1 फर्स्ट टाइम, v2 t2 सेकेंड टाइम एंड सेकेंड स्पीड, v3 t3 जितने टाइम और स्पीड हमारे साथ गिवन है ये आपस में मल्टीप्लाई करें प्लस फला वाला 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 vn tn, okay, and also you know the time is different, so t1 plus t2 plus t3 जितने टाइम्स गिवन है इस पर आपने डिवाइड करने हैं, डिवाइड इस पर हम एमसीक्यूज करेंगे, इसके ऊपर हम एमसीक्यूज करेंगे। जब डिफरेंट स्पीड्स हो, डिफरेंट हमारे पास टाइम हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जब डिफरेंट डिस्टेंसेस और डिफरेंट टाइम हो देन s1 plus s2 plus s3 and 2s1 sn डिवाइड बाय t1 plus t2, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट हैं, और इसके साथ साथ हम स्टडी करने जा रहे हैं, अगर टाइम हमारे साथ सेम हो और स्पीड डिफरेंट हो और स्पीड हमारे साथ डिफरेंट हो तो हमारे साथ लेट सपोज इसको हम पॉइंट नंबर 3 बनाते हैं, इधर पॉइंट नंबर 3, अगर टाइम हमारे साथ सेम हो तो किस तरह फॉर्मूला ये होगा, तो किस तरह होगा, देखिए ये फॉर्मूला नहीं होगा, जब टाइम हमारे साथ सेम हो जाए देन फॉर्मूला विल बिकम v1 plus v2 plus v3 up to n, जितनी स्पीड्स गिवन है डिवाइडेड बाय n which is n नंबर ऑफ स्पीड जितने गिवन है, लेट सपोज 3 स्पीड्स गिवन है तो आपने 3 पुट करना है, लेट सपोज 4 स्पीड इधर गिवन है तो 4 आपने पुट करना होगा, लेट सपोज n हमारे पास गिवन है तो आपने n, मैंने n पुट कर लिया, n हमारे पास गिवन है। तो जब स्पीड हमारे साथ डिफरेंट हो, ये पॉइंट नंबर 3 है, और जब डिस्टेंस हमारे साथ था और टाइम हमारे साथ था, दोनों डिफरेंट थे, तो कौन सा फॉर्मूला, s1 plus s2 plus s3 into s1 equal to up to sn divided by t1 plus t2 plus t3 up to tn, and if speed is different and time is different, then we will use v1 t1 plus v2 t2 and plus v3 t3 up to vn tn divided by t1 plus t2 plus t3। जब हमारे पास टाइम सेम स्पीड डिफरेंट तो हम ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, v1 plus v2 plus v3 up to vn divided by n, n is the number of speed, let's suppose 20 kilometer per second, 30 kilometer per second, 40 kilometer per second, ये हमारे पास 3 स्पीड गिवन है, तो आपने यहाँ पर 3 हमारे साथ यहाँ पर पुट करना होगा, और इसके साथ एक और फार्मूला है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। फोर्थ वन, एफ डिस्टेंसेस हमारे साथ लेट सपोज सेम है और स्पीड जो है हमारे साथ
डिफरेंट है, स्पीड जो है डिफरेंट है, तो हम किस तरह एवरेज स्पीड को फाइंड करेंगे, तो हम किस तरह एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होगा 2v1 v2 divided by v1 plus v2, and this is the formula we will use। जब डिस्टेंसेस हमारे साथ सेम हो तो इसका जिक्र इसमें नहीं होगा, डिस्टेंस का जिक्र इसमें नहीं होगा, सिर्फ स्पीड डिफरेंट 2v1 v2 एंड डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो हम इस फार्मूले को करेंगे जिस तरह, अगर हम कहें कि डिस्टेंसेस सेम का मतलब क्या है, लेट्स सपोज हम कहें पाकिस्तान टू लंदन, पाकिस्तान टू लंदन हमारे साथ एक एरोप्लेन गया है, और लंदन टू पाकिस्तान, लंदन टू पाकिस्तान, तो डिस्टेंस हमारे साथ दोनों का सेम है, दोनों का डिस्टेंस हमारे साथ सेम है, लेकिन स्पीड अगर हम कहें कि एरोप्लेन ने पाकिस्तान से लंदन जा रहा था तो 240 किलोमीटर पर आवर थी, और इधर 260 किलोमीटर पर आवर थी, तो दोनों की स्पीड चेंज थी, दोनों की स्पीड चेंज और डिस्टेंसेस दोनों का सेम, तो इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक एमसीक्यूज है, हम एमसीक्यूज को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि एमसीक्यूज में हम इसके ऊपर एमसीक्यूज हैं। अ कार एक्सेलरेट, एमसीक्यूज, a car accelerates, a car accelerates with the, हम इस तरह लिख सकते हैं, लेट्स सपोज हम पॉइंट आउट करते हैं, a car accelerate with the speed, स्पीड हमारे साथ गिवन है, लेट्स सपोज हमारे साथ गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड हमारे साथ, एंड 2 सेकेंड, और इसके साथ साथ सेकेंड हमारे साथ गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, ये भी हमारे साथ 2 सेकेंड है, लेट्स सपोज हमारे साथ 2 सेकेंड है, और इसके साथ साथ थर्ड हम लेते हैं, थर्ड यहाँ पर हमारे साथ 60 मीटर पर सेकेंड, एंड हमारे साथ ये हैं, लेट्स सपोज हम लेट्स सपोज हम 6 सेकेंड इसमें लेते हैं, 6 सेकेंड में हमारे पास ये कार एक्सेलरेट विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड, एंड द टाइम इज दैट, एंड यू कैन सी from this MCQs we can see that the speeds are different, that the speed v1 is not equal to v2 and v2 is not equal to v3, and the time t1 is equal to t2 but it is not equal to t3, so time and speed both are different, and we know that if time and speeds are different, then which formula we will use? Average speed is equal to v1 t1 plus v2 t2 v3 t3 divided by t1 plus t2 plus t3. So what is v1? 20. What is v1? 20. What is t1? 2 plus what is v2? 40. t2 2 second plus 60 and 2 6 divided by 2 plus 2 plus 6, and we will get 40 plus 80 plus 360 divided by 10, add them, then 4, I think so we will get this
we will get this and cancel it. 48 meter per second is the average speed. As the average speed, 48 meter per second is the average speed. A car accelerates with a speed of 20 meter per second and 2 second, and 40 meter per second and 2 second, and 60 meter per second and 6 second. V1 is not equal to V2 and not equal to V3, and we know that T1 and T2 are equal, but it is not equal to T3. So it means that the car is accelerate with a different speed and with a different time, so we will use this formula for average speed: V1 T1 plus V2 T2 plus V3 T3, and divide by T1 plus T2 plus T3. So if we put these values V1, V2, V3, T1, T2, T3, then we will get 48 meter per second, which is the answer of this MCQs. So I am going to discuss the second MCQs. If a body moves if a body move with first half time, the first half time with a speed of 60 kilometer per hour, 60 millimeter per hour, and if a body moves with first half time with the speed of 60 kilometer per hour, and for second half time with a speed of we are going to write 40 kilometer per hour, then what would be the average speed? तो average speed हमारे साथ कितना होगा? तो देखिए, let's focus on the MCQs that the time is same, because first half time and second half time are equal. First half, second half, both are equal. If both are equal, T1, it means that T1 is equal to T2. T1 is equal to T2. So from T1 is equal to T2 from given data, first half time, second half time, it is equal. T1 is equal to T2, and V1 is equal to 40 kilometer per hour. I think so, 40 kilometer per T1 is 60 kilometer per hour, and V2 is equal to 40 kilometer per hour. So we know that if time is same and there is different speed, then how we can find out? 2 V1 V2 divided by V1 plus V2. This is the formula which we will use to find out the average speed. So average speed 2, V1 is equal to 60, V2 is equal to 40, and 60 plus 40, 200 divided by 100. Cut it then. I think so. If I'm not wrong, 2 meter per second is the average speed. 2 meter per second is the average speed. If I'm not wrong, just think about that, that I'm not wrong. Speed are same. Okay, I made a mistake. How?
this formula we can use if distances are same, but here the time is same, not the distances is same. So which formula will we can apply for it? Okay, the formula is v1 plus v2 डिवाइड बाय कितनी स्पीड हमारे साथ गिवन है 1 2, तो 2 हमारे साथ स्पीड गिवन है तो n को हम 2 लेंगे। v1 कितना है 60, v2 कितना है 40 डिवाइड बाय 2, तो हमारे साथ कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। ये इसका एवरेज स्पीड आया, ये इसका एवरेज स्पीड आया। और इसके साथ साथ हम एक और एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ डिस्टेंस सेम होंगे। अब इसमें हमारे साथ डिस्टेंस सेम हो गए। लेट्स सपोज हमारे साथ एक एरोप्लेन है, लेट्स सपोज एक एरोप्लेन है जो कि हमारे साथ लेट्स सपोज हम लिख सकते हैं पाकिस्तान से लंदन हमारे साथ गया और इसकी स्पीड थी, लेट्स सपोज हम लिख सकते हैं इसकी स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर, 260 किलोमीटर पर आवर। और फिर ये ही एरोप्लेन लंदन टू पेशावर पाकिस्तान, अगेन I made a mistake, okay, London to Pakistan with 240 kilometer per hour, then what would be the average speed? तो एवरेज स्पीड कितना होगा? एक एरोप्लेन है पाकिस्तान से हमारे साथ लंदन गया 260 किलोमीटर पर आवर से, और यही एरोप्लेन पे लंदन टू पाकिस्तान आया 240 किलोमीटर पर आवर से, तो हमारे साथ इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? हमारे साथ कितनी होगी? तो देखिए डिस्टेंसेस दोनों में सेम है, s1 इज इक्वल टू s2, और हमारे साथ क्या डिफरेंट है? हमारे पास स्पीड जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, v1 260 है और v2 240 है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे साथ गिवन है जो कि हमने पढ़ा था 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो देखिए v1 कितना है? v1 260, v2 240, 260 प्लस 240। तो देखिए एवरेज स्पीड हमारे साथ गिवन है कितना? इसको हम एड अप करेंगे तो कुछ ना कुछ इससे वैल्यू आ जाएगी 10 0 0 4 5 2, देखें 0 0, no, it's multiplication not addition, so you can calculate these and find out the result is 238 meter per second, 238 meter per second. This is the result of this MCQs. So now I'm going towards velocity. That what is velocity? Velocity क्या है? आज हम velocity को स्टडी करेंगे। आज हम ये स्टडी करेंगे कि velocity क्या है। स्पीड खत्म हो गया, स्पीड हमारे साथ खत्म हो गया। Now we are going to study velocity. That what is velocity? The rate of change of displacement. We can say that it is velocity. The displacement covered by a body in unit time is called velocity. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हम डिस्टेंस को स्टडी करते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। और इसके लिए वेलोसिटी के लिए हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम इसमें जिक्र करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक शॉर्टेज डिस्टेंस होती है और एक खास महसूस इसका डायरेक्शन होता है।
तो वेलोसिटी का भी एक खास डायरेक्शन होता है, तो इसलिए हम इसको इस पे स्टडी करते हैं। एन यूनिट टाइम, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी है। तो ये वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ वेक्टर है, तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और यूनिट टाइम। ओके, एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट बिल्कुल सेम स्पीड की यूनिट जो है, ऐसा यूनिट एपीएस सिस्टम में जो हमने लिखा था, सीजीएस सिस्टम में हमने जो लिखा था, यही यूनिट इसके हैं, यही यूनिट इसके हैं। तो देखें, इसके बाद हम इसके टाइप्स को स्टडी करते हैं कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, the total velocity covered by body divided by total time, इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इस तरह हम मैथमेटिकली इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ जाते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे साथ क्या है। लेट्स elaborate यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if a body covers equal displacement and equal interval of time, तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो जाए तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। लेट सपोज एक बॉडी इधर से ये कि 2 मीटर है, लेट सपोज हमारे साथ 2 सेकंड में हमारे पास गई, और सेम डिस्टेंस ये है 2 मीटर और 2 सेकंड में इसने कवर किया, तो ये इसका क्या होगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है। और इसके बाद हम करने जा, लेकिन याद रखें इसमें मैग्नीट्यूड जो है ये सेम है, मैग्नीट्यूड इसमें सेम है। अगर डायरेक्शन का चेंज होगा किसी और में, जैसे सपोज एक बॉडी इस तरफ जा रही है और दूसरी इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में, ये 2 मीटर ये 2 मीटर, मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन में चेंज, इसलिए इसके डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन के चेंज होने से ये चेंज होता है, ये चेंज होता है। तो इसके बाद हम वेरिएबल स्पीड को स्टडी करते हैं कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी को, सॉरी वेरिएबल वेलोसिटी। If a body covers unequal displacement and equal interval of time, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं, इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। लेट सपोज यहां से यहां तक वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, लेट सपोज हमारे साथ क्या है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। लेट सपोज हमारे साथ यहां से यहां तक 2 मीटर, यहां से यहां तक 4 मीटर, लेट सपोज यहां से यहां तक 6 मीटर और यहां से यहां तक हमारे साथ 8 मीटर, लेट सपोज इस तरह है। डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है,
अनइक्वल हैं, लेट सपोज इसको हम कहते हैं कि ये कितने टाइम में 2 सेकंड में लेट सपोज कवर हुआ, और ये भी 2 सेकंड में, ये भी 2 सेकंड में, ये भी 2 सेकंड में, सारों का टाइम एक जैसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट जो है हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हम इसको वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे, इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ दे रहा है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ दे रहा है। इसके बाद हमारे साथ आता है क्या, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस the velocity of a body at any instant of time, at any instant of time, इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी मेजर्ड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, द वेलोसिटी, या इस तरह हम कह सकते हैं द वेलोसिटी मेजर्ड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट एक खास मुद्दत में, एक खास एक छोटे से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हम अगर हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहे, अगर फाइंड आउट करें तो हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको हम कहेंगे। तो याद रखें हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरह डिनोट करते हैं, V instantaneous is equal to limit del t approaches to 0 del d divided by del t, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। और ये याद रखें कि V instantaneous हमारे साथ derivative of displacement to with respect to time, the derivative of displacement with respect to time gives us instantaneous velocity, gives us instantaneous velocity, ये हमारे साथ ये देता है। एवरेज और हाफ पॉइंट इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हैं क्या, ये है कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। नोट में ये बात लिख लें that average velocity is less than or equal to average speed, या तो एवरेज स्पीड के इक्वल हो सकता है या एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम होगी। किस केस में हमारे साथ ये इक्वल होगी और किस केस में एवरेज वेलोसिटी कम होगी। देखिए जिस तरह डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, तो डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है वेलोसिटी के साथ, डिस्टेंस रिलेटेड है स्पीड के साथ, तो यही कंडीशन उसके लिए भी है। तो देखें हम अगर स्ट्रेट पाथ के लिए बात करें, फॉर स्ट्रेट पाथ के लिए बात करें, स्ट्रेट पाथ के लिए बात करें, तो स्ट्रेट पाथ के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है ये बराबर होगी एवरेज स्पीड के, और इसका रेशो जो होगा, रेशो हमारे साथ 1 के बराबर होगा, या फिर हम इसको इस तरह भी उल्टा कर सकते हैं, एवरेज स्पीड डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी, तो वही 1 हमें देगा, तो वही 1 हमें देगा। अगर हम करोड़ पाथ के लिए देखें, फॉर करोड़ पाथ के लिए देखें, तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जो है हमारे साथ कम होगी किससे, एवरेज स्पीड से, तो इसका जो रेशो होगा ये हमारे साथ लेस देन 1, या फिर हम अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, इसको इन्वर्ट एवरेज स्पीड को ऊपर लिख ले और एवरेज वेलोसिटी को नीचे लिखे, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो याद रखें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज
के हवाले से एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। और एवरेज वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। एक पॉइंट है, लेट्स एलेबोरेट इट आफ्टर दैट। टुडे लेक्चर is over. Okay, in circular path, in circular path, circular path में किस तरह होता है देखें। circular path, let's draw a circular path। इस पॉइंट पर हम देखते हैं और इस पॉइंट के दरमियान एक डायरेक्शन ये, और ये हमारे साथ कार्ड, कार्ड इसको हम कार्ड कहते हैं मैथमेटिक्स में, कार्ड इसको हम क्या कहते हैं, कार्ड, CHORD, कार्ड। और इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। तो देखें ये टेंजेंट टू द सर्कल और एक कार्ड है। द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, टेंजेंट टू द सर्कल होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगा। टेंजेंट टू द सर्कल किस चीज का डायरेक्शन होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा अलोंग द कार्ड होगा, अलोंग द कार्ड। ये क्या, ये किस चीज का डायरेक्शन होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। अलोंग द कार्ड हमारे साथ एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, और टेंजेंट टू द सर्कल ये डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन tangent to the circle, while the direction of average velocity is along the card, is along the card in a circular path. So this is the today lecture. अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स जरूर करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। ओके, दिस इज द लेक्चर अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसके बाद हम दूसरे लेक्चर के साथ आएंगे जो कि होगा हमारे साथ किसके ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर, जिसके हम स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन के टाइप्स हम इसमें स्टडी करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसमें डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में क्या फ़र्क, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या फ़र्क है, हम इसको भी स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ जो टाइप्स हैं वगैरह इसके ऊपर MCQs हम इसके बाद एक्सेलरेशन पर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।